Let's turn to the word of the Lord this morning. आइए सुबह का समय परमेश्वर के वचन में हम We have been talking about the blessings of Abraham. हम अब्राहम के आशीर्वाद के बारे में बात कर रहे We've हैं। been talking about inheriting Abrahamic blessings. अब्राहम के आशीर्वाद को प्राप्त करने के विषय में हम देख रहे हैं। Every week's message is available on YouTube. You can go back and listen to the past messages. हर एक संदेश के हर रविवार के संदेश YouTube में उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो उन सारे संदेशों को देख सकते हो। And we are specifically speaking about how the word of God renews our mind so that we can start inheriting Abrahamic blessings. और विशेष तौर पर इस बात को हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम अपने मन को हम नया कर ले ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मन को नया कर ले ताकि अब्राहम के आशीर्वादों को हम प्राप्त कर सकें। And even today I want to speak something about the word of God. और आज भी परमेश्वर के वचन के बारे में आज मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा। Take your Bibles and turn with me to the Gospel of Mark chapter 4 verses from 3 to 9. मरकुस रचित सुसमाचार इसका चौथा अध्याय तीसरे वचन से 9वें वचनों तक। The Gospel according to Mark chapter 4 verses from 3 to 9. मरकुस रचित सुसमाचार इसका चौथा अध्याय तीसरे वचन से 9वें वचनों तक। I'm just going to read it and you can follow with me. और मैं पढ़ूंगा और मेरे साथ साथ आप भी देख लें। Listen, a farmer went out to sow. As he was sowing, some seeds fell along the path, and birds came and ate them up. Others fell on stony ground, where they did not have a lot of soil. They sprouted at once because the soil wasn't deep. But when the sun came up, they were scorched. Since they did not have any roots, they dried up. Others fell among thorn bushes, and the thorn bushes came up and choked them out, and they did not produce anything. But others fell on good soil and produced a crop. They grew up, increased in size, and produced 30, 60, or 100 times what was sown. Verse 9, he added, let the person who has ears to hear listen. Now this parable is something that we've heard many times in our lives. अब ये जो दृष्टांत है हमारी जिंदगी में कई बार इस दृष्टांत को हमने सुना है। A farmer went to sow the seed. और एक किसान बीज बोने निकला। It falls on 4 kinds of grounds. और 4 प्रकार की भूमि पर वो बीज गिरा। One, it falls on the path. और एक तो रास्ते के किनारे गिरा। It falls on stony ground. और पथरीली जगह पर गिरा। It falls on thorny bushes. और जो है कटीली का झाड़ियों पर गिरा। Then it falls on good soil. और उसके बाद अच्छे जमीन पर गिरा। And then verse 9. और 9वां वचन इस प्रकार से The बतलाता है। Bible says, then Jesus added. और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि तब उसने कहा, let the person who has ears to hear listen. और ऐसा जन जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। Now let's jump to verse 11. अब आइए 11वें वचन में आए। Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, the secret about the kingdom of God has been given to you. तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। But to those on the outside, everything comes in parables. परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। Jesus is looking at the disciples and he says this. यीशु अपने चेलों की ओर देखकर वो इस प्रकार से कहता The है, secret regarding the things I am talking is given to you. और जो रहस्य जिस विषय को मैं बता रहा हूँ उसका रहस्य तुम पर प्रकट किया गया Now है। from verses 14 to 20, अब 14 वचन से लेकर 20वें वचनों तक Jesus is now giving the secret. और यीशु मसीह उस रहस्य को बतला रहा है। He's giving the explanation of the parable that he spoke. जो दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा उस दृष्टांत की और जो बखान करके वो बता रहा है। Verse 15 to 20. और 15 से लेकर 20वें वचनों तक। We're going to read it now. और इस समय हम पढ़ेंगे। Some people are like the seeds along the path where the word is sown. When they hear it, Satan immediately comes and takes away the word that was sown in them. Others are like the seeds sown on the stony ground. When they hear the word, at once they joyfully accept it. But since they don't have any roots, they last for only a short time. When trouble or persecution comes along because of the word, they immediately fall away. Still others are like the seeds sown among the thorny bushes. These are the people who hear the word, but the worries of life, the deceitful pleasures of wealth, and the desires of other things come in and choke the word so that it can't produce a crop. Verse 20. Others are like the seeds sown on good soil. They hear the word, they accept it, and produce crops 30, 60, or 100 times what was sown.
Jesus now he's giving the explanation of what he was talking about. और यीशु मसीह जो उसने बताया उस बात की व्याख्या, उस बात को प्रकट करके वो बखान करके बता He रहा says था। the seed is the word of God. और वो कह रहा है कि वो बीज जो है परमेश्वर का वचन है। And that seed falls on 4 kinds of soil. और वो बीज 4 प्रकार के जमीन पर गिरता Or है। on 4 kinds of grounds. ये 4 प्रकार के जमीन पर गिरता है। Now this is a picture of the church. और ये कलीसिया का एक चित्र This है। is a picture of the body of Christ. और ये मसीह की देह का एक चित्र है। I believe in every church there are 4 kinds of people, मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक कलीसिया में 4 प्रकार के लोग होते which हैं। represents these 4 grounds. और जो ये 4 प्रकार की जमीन को संबोधित करते The हैं। seed is sown. और बीज तो बोया गया The है। word comes from God. वचन परमेश्वर की ओर से आता The है। first kind of people it says is like the path. पहले प्रकार के लोग हैं, उसके बारे में बताया गया कि वो रास्ते के किनारे। If you look at the roads, अगर आप रास्तों को देखो they are tarred. और वे पूर्णतः से वो डामर से लगाए हुए They हैं are concrete. और वो पूर्णतः से कंक्रीट किए हुए There's हैं no mud, there's no soil. और उस पर उसमें कोई मिट्टी नहीं है, कोई मिट्टी उसमें मिली हुई नहीं The है। seed falls on some people like this. और कुछ लोगों के अंदर इस प्रकार से बीज गया Hard in heart. और हृदय में कठोरता, कड़कपन। Hard in heart. वो जो है कड़क हृदय। Hardness comes from many different things. कड़क बातें जो है कई अलग बातों के द्वारा वो कड़कपन आता है। One, hardness comes through tradition. और एक तो कठोरता रीति रिवाजों के द्वारा वो कठोरता आती है। Hallelujah. Hallelujah. Second, hardness comes through an unrenewed spirit. और दूसरा जो है नई न की हुई आत्मा के द्वारा ये कठोरता, ये कड़कपन आता है। Hardness comes through unforgiveness. और क्षमा न करने की बात के द्वारा ये कठोरता या कड़कपन आता है। Hardness comes through bitterness. और कड़वाहट के द्वारा ये कठोरता होती है। Hardness comes through worries and tension. और ये कठोरता जो है वो तनाव के द्वारा, कठिनाइयों के द्वारा आती So है। when a person carries these things and comes to the house of God, और जब एक व्यक्ति इन सारी बातों को लेकर परमेश्वर के घर में आता so है he could be a good believer on other days. तो वो दूसरे सारे दिनों में तो बहुत ही अच्छा विश्वासी But होगा। something happened this week. लेकिन इस सप्ताह कुछ होता है And you know, he comes with all that tension on a Sunday morning. और रविवार की सुबह इन सारी बातों के तनाव के साथ वो आता है His heart has become hard. और उसका हृदय बहुत ही कठोर हो गया Because है there are so many things that are pressing against his heart. क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसके दिल को दबा रही है। So when the word comes, और इसलिए जब वचन आता he है is sitting there. वो वहां पर बैठा His है, eyes are fixed on you. उसकी आंखें आप पर लगी है, His ears are open. उसके कान खुले हैं, He's not sleeping. वो सो भी नहीं रहा है, He's receiving the word. वो वचन को प्राप्त कर रहा But है, that word is not finding any root in his life. लेकिन वो वचन उसकी जिंदगी में कहीं पर भी जड़ नहीं पकड़ The पा रहा। Bible says बाइबल बतलाती the है devil immediately comes and takes away the word. शैतान आकर तुरंत उन वचनों को छीन ले जाता So है। this man, he comes. और इसलिए ये ऐसा व्यक्ति वो आता है This woman, she comes. और ये स्त्री आती है Hard heart. और कठोर हृदय Receives a word. वचन को प्राप्त करते Goes हैं, out. बाहर जाते The हैं devil fills his stomach. और शैतान उनके पेट को भर देता है। Because he's eating some seed now. शैतान अपने पेट को भरता है क्योंकि कुछ बीजों को वो खा लेता है। But that person goes hungry as he came. लेकिन वो व्यक्ति जैसा भूखा आया था वैसे ही भूखा चले जाता The है। second kind of people, दूसरे प्रकार के लोग it falls on rocky ground. और कटीली झाड़ियों पर वो बीज गिरा। Now rocky grounds are a little better than hard ground. और कटीली झाड़ियों का जो जगह है वो कठोर जमीन से थोड़ी सी अच्छा है, But even they have a problem. लेकिन उनमें भी एक समस्या What है। does the word say? वचन क्या कहता है? Verse 16. और 16वां वचन, It says, they hear the word, और ऐसा लिखा है कि वे वचन तो सुनते हैं at once they joyfully accept it. और बहुत ही वचन सुनने पर बहुत ही आनंद के साथ ग्रहण कर लेते But हैं, since they don't have any roots, परंतु भीतर जड़ न रखने के they कारण last only a short time. वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। Very common. और बहुत ही सामान्य ये बात है। This constitutes about 60% of the church. और ये जो बात है तकरीबन कलीसिया के 60% लोगों में ये When बात the है। word comes, you're excited. जब वचन आता है बहुत ही उत्सुक हो जाते हैं। Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, pastor जी। That was the word I was looking for. और वही वचन था जिसको मैं चाह रहा So they था were all happy. और वो बहुत ही खुश रहते But हैं। the Bible says लेकिन बाइबल बतलाती they है have no root. उनके अंदर जड़ नहीं They पकड़ता have no personal life. और व्यक्तिगत जीवन उसके प्रति नहीं They होता have no personal relationship with God. और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता उनका नहीं रहता Their relationship with God is only via the pastor. और पास्टर के द्वारा ही परमेश्वर के पास उनकी वो संगति रहती है Their relationship with God is only via the church. और परमेश्वर के साथ उनकी जो संगति है वो कलीसिया के द्वारा केवल रहती No है। Bible reading, बाइबल पढ़ना नहीं no prayer, और प्रार्थना नहीं no रहती family time, और पारिवारिक समय नहीं no रहता, meditation time, कोई अध्ययन और मनन करने का
का no समय नहीं sitting रहता, quiet time, और जो है प्रभु के सामने स्तब्ध शांत रहने का समय नहीं no रहता, listening from God time. परमेश्वर के द्वारा सुनने का कोई समय उनके पास नहीं When the रहता। word comes here, hallelujah. लेकिन जब ये वचन आता है तो हालेलुया, But that word does not take root लेकिन वो वचन उनमें जड़ नहीं because पकड़ता, they don't have a relationship. क्योंकि प्रभु के साथ उनका कोई रिश्ता और नाता The नहीं। Bible says the seed just dies off. और बाइबल बतलाती है कि वो बीज जो है बस मर जाता So है। you can be an excited believer, और आप बहुत ही उत्सुक जनक ऐसे विश्वासी हो सकते हो, but your life can still be fruitless लेकिन ऐसा होने के बावजूद आपका जीवन जो है फल रहित हो सकता है, because you don't have a personal relationship. क्योंकि आपका व्यक्तिगत ऐसा नाता और रिश्ता प्रभु के Now साथ। the third kind, अब तीसरे प्रकार it के falls लोग, among thorny bushes. और वो कटीली झाड़ियों पर गिरा, The seed falls there. और वहां पर वो बीज गिरा, It finds soil. और वहां पर उसे थोड़ी सी जमीन मिली, So the seed begins to grow. और इसलिए वो बीज बढ़ने It लगा, begins to germinate. और वो जो है बढ़ने लगा, There's उगने a लगा, small plant that comes up. और छोटा सा पौधा वो प्रकट हुआ As आया, that plant begins to grow, और जैसा वो पौधा बढ़ने it लगा, finds itself surrounded with thorns. और वो पाता अपने आप को सारे कांटों से भरा हुआ And the पाता, Bible says that these thorns are the worries of life. और बाइबल बतलाती कि ये जो कांटे हैं ये जीवन की चिंताएं And the हैं, Bible says the worries of life begins to choke this plant that has come from the word of God. और बाइबल बतलाती कि ये जो वो कांटे हैं उस पौधे को दबाने लगते हैं, जो सारी ओर से चिंताएं उसकी ओर घेरी Are रहती you है। listening to what I'm saying? और मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा And है, because of the worries of life, और जीवन की चिंताओं की वजह से this plant is not able to grow. और ये पौधा जो है बढ़ नहीं पाता, Eventually it will die out. और आगे चलकर वो मर जाता है। A big group of believers fall under this category also. बहुत ही बड़े स्वरूप में जो विश्वासी इस प्रकार के क्षेत्र में आते They हैं, receive the word, और वे वचन को प्राप्त करते they हैं, take decisions, और वे निर्णयों को लेते they हैं, start things in their life, और अपनी जिंदगी में उन बातों की शुरुआत वे करते but हैं, as they begin to grow spiritually, लेकिन आत्मिक स्वरूप से जैसे वो बढ़ने लगते the हैं, worries of life begin to choke them. और संसार की चिंताएं उन्हें दबाने लगती है। I will go for Friday evening services. और मैं शुक्रवार की शाम की सभाओं में जरूर जाऊंगा, With great effort they come to this 2 Fridays. और बहुत ही मेहनत के साथ वो कोशिश करते हुए 2 शुक्रवार में आते हैं, Their lives are blessed. और उनका जीवन बहुत ही They आशीर्वादित want to होगा, come और वे continuously. लगातार और भी आना चाहते But हैं, now something comes up. लेकिन अब कुछ तो हो जाता Oh, है। but if I go there, then I'm not able to do this. लेकिन अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं इस बात को कर नहीं If पाऊंगा, I go there, then I'm not able to complete that. अगर मैं वहां जाऊंगा तो इस बात को पूरा नहीं कर If पाऊंगा, I go there, then I might miss that. अगर मैं वहां जाऊंगा तो उस बात से चूक जाऊंगा। Ah, come on, forget it. अरे चलो जाने दो। So what has happened? और क्या होता है, You took root, आप जड़ पकड़ते हो you began to grow, और आप बढ़ने लगते हो, but the worries of life, लेकिन जीवन की चिंता it just started choking you. और वो आपको दबाने लगती The है, Bible says it just kind of puts you down. और बाइबल बताती है कि ये सारी बातें आपको नीचे गिरा Then it देती है। says the fourth group, और चौथे प्रकार की बात यहाँ पर, seed that falls on good soil. और ऐसा बीज जो अच्छे जमीन पर गिरता है, I believe everyone here is good soil. और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर हर एक जन जो है अच्छी जमीन पर है। Turn to the person next to you and say you're good soil. अगले आपके बगल वाले को देखकर बोलिए कि आप अच्छे भूमि पर हो। You know, you're doing a prophetic, confession here. देखिए यहाँ पर आप भविष्यवाणी के तौर की कबूली कर रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. You might know that person does not even open the Bible, the pastor in the house, and you're telling me to tell good soil. और आप बोलोगे पास्टर जी ये व्यक्ति तो प्रभु के घर में आता है, बाइबल भी नहीं खोलता, और आप बोल रहे हो कि आप अच्छे जमीन पर भूमि पर हो, आप Tell उसे prophetically. और भविष्यवाणी के तौर पर उस व्यक्ति से आप कहें Your words will come to pass. आपके वचन आपने जो बोला जरूर पूरा I होगा। believe everyone here is good soil. मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर हर एक जन जो है वो अच्छी जमीन पर है, So the भूमि seed है। falls on good soil. और वो वचन अच्छी भूमि पर The गिरता है। Bible says they hear the word. बाइबल बतलाती है कि ऐसे जन वचन को सुनते हैं, Verses 20, they hear the word, 20वां वचन में वचन सुनते हैं, they accept the word, वचन को ग्रहण करते हैं, and they produce crops. और वे जो है फल लाते हैं, Some 30-fold, और कुछ 30 गुना, some 60 times, कुछ 60 गुना, some 100 और times. कुछ 100 गुना। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Now when I was reading this portion, और जब इस भाग को मैं पढ़ रहा one था, question came to my mind. एक प्रश्न मेरे मन में If आया, the soil was good, अगर भूमि अच्छी थी why did some only produce 30-fold? तो क्यों कुछ लोग केवल 30 गुना ही फल दे Why पाए? did some only give 60? क्यों कुछ लोग केवल 60 गुना ही फल दे And why पाए? did some only give the full 100? और क्यों केवल थोड़े ही लोग, कुछ लोग ही 100 गुना कैसे फल दे The पाए? seed was sown on good soil.
और बीज तो अच्छी भूमि पर बोया गया था। Hallelujah. Hallelujah. But even in the good soil, लेकिन अच्छी भूमि में भी why this difference of crop? और क्यों ये फल के विषय में अलगाव था? Why, if everyone is good soil, क्यों जबकि सारे लोग अच्छी भूमि हैं, why is someone only going to give 30? तो क्यों केवल कुछ ऐसे हैं जो 30 गुना दे पाते Why हैं? will someone only give 60? क्यों केवल कुछ लोग 60 गुना फल दे पाते And हैं? why will someone give 100? और क्यों केवल कुछ जो है केवल 100 गुना कुछ लोग फल I देंगे? don't know if this question occurred to you or not. और मैं नहीं जानता कि ये प्रश्न आपके अंदर आया कि नहीं, Because generally in preachings, pastors say like this. क्योंकि सामान्य तौर पर प्रचार में पासवान ऐसा बोलते हैं And some give 30 and 60 and 100, praise the Lord. और कुछ लोग 30 गुना 60 गुना और 100 गुना देते हैं, प्रेज द So लॉर्ड। in everyone's mind it's only the 100. और सारे लोगों के दिमाग में मन में केवल वो 100 गुना Or they give fruit. और यहाँ वे फल देते हैं, इतना रहता My है। question was, why that 30? लेकिन मेरा प्रश्न ये था केवल 30 गुना क्यों? Why that 60? और क्यों वो 60? And why only someone could give 100? और क्यों केवल कुछ लोग 100 गुना प्रतिफल दे पाए? And I was just studying through the word, और मैं परमेश्वर के द्वारा वचन में पढ़ रहा and था I see the answer to this in Jesus' statements. और मैंने इसका जवाब जो है यीशु के वाक्यों में, यीशु के बोलने में इसका जवाब मैंने पाया। Verses 9 of Mark chapter 4. मरकुस इसका 4था अध्याय के 90 वचन। You know, this is called getting drawn to the word of God, you know. Children just can't control themselves. They get drawn to the word of God. देखिए बच्चे अपने आप को काबू में नहीं रख पाते, वे प्रभु के वचन की ओर खींचे चले आते That's why हैं। Jesus said you got to be like little children, you'll really grow. और इसलिए यीशु ने कहा कि आपको छोटे बच्चे के समान होना है, तभी आप बढ़ पाओगे। Verses 9. 9वां वचन। He says, let the person who has ears to hear listen. और ऐसा लिखा कि उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुने। Now when you read this Mark chapter 4, मरकुस 4थे अध्याय को जब आप पढ़ते हो, this might look a little out of place. Why is Jesus now talking about hearing? अब ये जरा कुछ बातों से विषय से अलग ही बात जान पड़ती है। क्यों यीशु यहाँ पर सुनने के विषय में कह रहा He's है? talking about the word of God. प्रभु के वचन के बारे में वो कह रहा He's है talking about people. और लोगों के बारे में बोल रहा Now है। suddenly he says hear. अब अचानक सुनने के विषय में बोल रहा Let है the person who has ears to hear listen. और जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। Now when we read verse 20, और जब 20वां वचन हम पढ़ते हैं, the seeds are sown on good soil. और अच्छी भूमि पर बीज बोए गए, And the seed that falls on good soil, और अच्छी भूमि पर जो बीज गिरते हैं, 3 things happen to that. और 3 बातें उनके साथ होती हैं। Those people, they hear the word. ये ऐसे हैं जो लोग सुनते हैं, Second, what they hear, they accept. और दूसरी बात जो बात वो सुनते हैं उसे वो ग्रहण करते हैं, And what they accept, they bear fruits and produce. और जिस बात को वो ग्रहण करते हैं उसको वो फल लाते हैं, फल देते हैं। The beginning of all this is hearing. और इन सारी बातों की जो शुरुआत है वो सुनना है, Only what you hear, you believe. और केवल जो आप सुनेंगे वही आप विश्वास करेंगे, Only what you have believed, you begin to live and bear fruit. और केवल जिस बात पर आप विश्वास करेंगे उस वैसा ही आप जियोगे, वैसा ही आप फल लाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me this morning? क्या सुबह के समय आप Mark 4 verse 20. मरकुस इसका 4था अध्याय 20वां वचन, You know, they hear the word. और वे वचन को सुनते हैं, What they hear, they accept. और जिस वचन को सुनते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं, What they accept, they start bearing fruit and producing. और जो ग्रहण करते हैं उसके बदले में वे फल लाते हैं, फल देते हैं। It begins with what they hear. और इसकी शुरुआत जो है वो जो सुनते हैं उससे होती है। Now, I was of this opinion that hearing is, me speaking and you hearing. अब ऐसे मेरी राय इस बात के बारे में ये थी कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे I हो, thought this is what the hearing is about. और मैंने सोचा सुनने के विषय में ये यानी ये बात वो But है। when you continue reading Mark 4, लेकिन मरकुस इसका 4था अध्याय आगे आप पढ़ोगे, Jesus gives a real meaning of what he meant when he said, he who has an ear, let him hear. अब यीशु ने जब कहा कि जिसके सुनने के कान हो सुन ले, इसके बोलने का मतलब वास्तविकता से बहुत ही अलगाव है। इस बात को आगे हम पढ़ते हैं। Read verse 21. 21वां वचन पढ़िए। Then Jesus said to them, और यीशु ने उनसे कहा, a lamp isn't brought indoors to be put under a basket or under a bed. क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? It is to be put on a lampstand. क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? Now, from talking about the word, अब वचन की बातों से शुरुआत करते talking हुए about soil, और जमीन की बातों से शुरुआत करते Jesus हुए starts talking about a lamp now. यीशु अब दीवट के बारे में बात कर रहा Now, है। there is a relationship in all these that Jesus is talking. अब ये सारी बातें जो यीशु बोल रहा है इनमें आपस में एक मेलजोल है। He says a lamp is not kept to be hidden. और वो कहता है दिया जो है छिपा कर नहीं रखते। A lamp, what is the use of a lamp or a candle?
candle, light, or a torch, we will understand that better. एक दिए का या एक मोमबत्ती का उपयोग कहाँ पर होता When है? do you use a torch? और आप टॉर्च का उपयोग कब करते हैं? When you don't see things clearly in front, और जब आपके आंखों के सामने बातें सफाई से नहीं दिखाई when देती, things are not visible clearly, और जब सफाई से वो चीजें वस्तुएं दिखाई नहीं देती, you use a lamp or you use a torch to make all things visible. और उस दीवट को या उस मोमबत्ती को या उस टॉर्च को आप ले आते हो ताकि आप सारी बातें साफ साफ आपको दिखाई When दें। a lamp is lit, और जब एक दीवट जलाया जाता है it brings light. और वो उजियाला ले आता है, It lights up everything around you. और आपके चारों तरफ वो जो है एक रोशनी में ले आता है, Nothing is in darkness. और कुछ भी अब अंधेरे में नहीं रहता, Everything is visible and clear. और सारी बातें दिखाई देती है और साफ साफ होती Now है। Jesus says, अब यीशु ने कहा a lamp एक दीप जो है that is used to light up, और वो जो उजियाला देने के लिए होता that है is used to reveal things, और वो बातों को प्रकट करने वाला होता है, is not to be kept shut. और वो जो है बंद किए जाने वाला या ढकने वाला नहीं होता, It is to be used for the purpose that it is created. और जिस बात के लिए उसका उपयोग जो बनाया गया है उसके लिए उसे उपयोग में लाना Now I चाहिए। want you to turn to Proverbs chapter 20 verse 27. और मैं चाहता हूं कि इस समय नीति वचन इसका 20वां अध्याय 21वें वचन में आप Proverbs 20:27. माफ कीजिएगा, नीति वचन इसका 20वां अध्याय 27वां वचन। It says, a person's spirit is the lamp of God. ऐसा लिखा है कि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक A है। person's spirit is the lamp of God. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। Your spirit, आपकी आत्मा, your heart आपका हृदय is the lamp of God. परमेश्वर का दीपक है। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me here this morning? ये सुबह के समय आप मेरे साथ हो। Hallelujah. हालेलुया। Your spirit, आपकी आत्मा, your heart आपका हृदय is the lamp of God. वो परमेश्वर का दीपक है। And God lights that lamp for a purpose. और परमेश्वर उस दीपक को एक उद्देश्य के लिए जलाता है। When you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, when you read your Bibles, जब आप अपने बाइबल को पढ़ते the हो, words of God, परमेश्वर के वचन they light up your lamp. वो आपके दीपक को जलाता है। What does it mean that the lamp is lit? और वो दीवट जलाया गया है, इसका मतलब क्या है? God lights the lamp. That is, God lights our spirit and lights our heart. परमेश्वर हमारे दीवट को जलाता है, यानी परमेश्वर हमारी आत्मा, हमारे हृदय को इस प्रकार से जलाता है, So that when we read the word of God, ताकि जब कभी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, everything in the word of God is revealed to us. और हर एक बात जो परमेश्वर के वचन में है वो हम पर प्रकट की जाए। You use the torch when it's dark. और जब अंधेरेपन में आप टॉर्च का उपयोग करते And हो, when you use a torch now, everything is visible. और जब टॉर्च का उपयोग आप करते हो तो सारी बातें दिखाई देती The है। same way, उसी प्रकार से God lights our heart परमेश्वर हमारे हृदय में उस ज्योति को लगाता है, through His Son Jesus Christ. और अपने पुत्र यीशु के द्वारा, Through salvation, उद्धार के द्वारा our hearts have become the lamp of God. हमारा हृदय परमेश्वर का दीवट बन गया And है, that lamp is burning bright. और वो दीपक जो है बहुत ही उजियाले में, बहुत ही वो बड़े स्वरूप से वो चमकता है। But where is this lamp bringing brightness to? लेकिन ये दीवट कहाँ पर उजियाला ला रहा When है? you read the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, the lamp that is burning inside, आपके अंदर जो दीवट जल रहा it है, begins to pour light on the word of God. परमेश्वर के वचनों पर वो प्रकाश डालता And है। when your lamp pours light on the word of और God, जब आपका दीवट उस परमेश्वर के वचन पर प्रकाश डालता है, there is nothing that is hidden now in the word of God. अब परमेश्वर के वचन में कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? Everything in the word of God is now open and it's for you. हर एक बात जो परमेश्वर के वचन में वो खुला हुआ और आपके लिए वो है। God has no secrets with the believer, I'm telling you. और मैं आपको बताऊं कि विश्वासी के साथ परमेश्वर कुछ भी रहस्य छोड़ नहीं रखता। With His light that is burning inside of you, वो जो उसकी ज्योति है जो आपके अंदर जल रही है, through that light He has revealed everything to you. और उसकी ज्योति के द्वारा सारी बातों को परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया He है। has revealed His plans concerning your life. आपके जीवन के प्रति जो उसकी योजना है उसने आप पर वो बातें He प्रकट has की है। revealed His plans concerning the world. वो संसार के विषय में जो प्रभु की योजना है उसने आप पर उस बात को प्रकट किया है। In the word of God there is nothing hidden from your spirit. परमेश्वर के वचन में आपकी आत्मा के लिए जो भी कुछ है वो छिपा हुआ नहीं God है। has no secrets with you and me. और आपके पास और मेरे साथ और आपके साथ परमेश्वर ने कुछ भी रहस्य छोड़ नहीं रखा। God desires to show His children everything. और परमेश्वर की चाहत है कि अपने बच्चों को सारी बातें वो प्रकट करें। Hallelujah. हालेलुया। That is done
through your lamp that is burning inside of you. और आपका जो दीपक है जो आपके अंदर जलता है उसके द्वारा ऐसा किया जाता Now, है। when we read in Mark, और जब हमने मरकुस में पढ़ा Jesus said, "He who has a ear, let him hear." और यीशु ने कहा जिसके कान हो वह सुने। And then again in verse 24 of Mark 4, the same chapter, मरकुस इसका चौथा अध्याय के 24वें वचन में here is what Jesus says. यहाँ पर यीशु ने इस प्रकार से कहा, Pay attention to what you're hearing. आप जो सुनते हो सतर्क रहो You will be evaluated by the same standard with which you evaluate. और जिस बात से आप नापते हो उसी बात से तुम्हारे लिए नापा He says, जाएगा। pay attention to what you're वो hearing. कहता कि जो आप सुनते हो ध्यान धरो Jesus says, be careful what you hear. और यीशु कहता कि जो आप सुनते हो उसके विषय में सतर्क रहो ध्यान रखो। Because what did we learn from the first parable? क्योंकि पहले दृष्टांत के द्वारा हमने क्या सीखा? What you hear, जो आप सुनते हो that you accept. वही आप ग्रहण करते What हो, you accept, जो आप ग्रहण करते that हो is what you do. वही आप करते हो। That is why Jesus says, और इसीलिए यीशु ने कहा be careful of what you hear. आप जो सुनते हो उसके विषय में सतर्क रहो Because what you are hearing is what you will believe. क्योंकि जो भी कुछ आप सुनते हो उसी पर आप विश्वास What you धरोगे will believe is what you will act upon. और जो आप विश्वास धरोगे उसी के मुताबिक आप काम भी करोगे। And here he says, और यहाँ पर वो कहता be है careful of what you जो hear. आप सुनते हो उसके विषय में ध्यान धरो Because according to the measure of what you hear, blessings will be measured and given to your life. और क्योंकि जिस हिसाब से आप सुनोगे उसी हिसाब से आपके जीवन में आशीर्वाद जोड़ा जाएगा। If you are going to have negative people around you all the time, अगर हर बार नकारात्मक व्यक्तियों को आपके चारों तरफ आप रखोगे and you are hearing only negative things, आप केवल नकारात्मक बातों को सुन रहे हो based on the negativity you're hearing all the time, और हर बार जो नकारात्मक बातों को आप सुन रहे हो उस पर आधारित you will find that that is what you will experience all the time. आप इस बात को देखोगे कि हर बार उन नकारात्मक बातों को ही आप जो है अनुभव करोगे। Hallelujah. Hallelujah. Our hearing is very powerful. हमारा सुनना बहुत ही शक्तिशाली है Because what we hear is what we believe. क्योंकि जो हम सुनते हैं वही हम विश्वास करते And हैं what we believe is what we will act upon. और जो हम विश्वास करते हैं वैसा ही कार्य भी करेंगे। Now, the lamp of God is in us. अब परमेश्वर का दीवट हमारे अंदर है We open the Bible और हम बाइबल खोलते हैं and we start reading. और हम पढ़ने लगते हैं। Now, what is Bible reading? अब बाइबल पवित्र शास्त्र पढ़ना क्या है Or what is prayer first? और यह प्रार्थना क्या है What सबसे is the पहले? difference between prayer and Bible reading? प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना इन दोनों में क्या फर्क A है? Sunday school teacher teaches the children like this. रविवार की संडे स्कूल टीचर इस प्रकार से बच्चों को सिखाती है। Prayer is you talking to God. प्रार्थना जो है वो आप प्रभु से बात करते हो Bible reading is God talking to you. और बाइबल पढ़ना ये होता है कि परमेश्वर आपसे बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। Prayer is you talking to God. प्रार्थना करना ये होता है कि आप परमेश्वर से बात करते हो। Bible reading is God talking to you. बाइबल पढ़ना ये होता है कि परमेश्वर आपसे बात करता है। Hallelujah. हालेलुया। That's why now you know why I stress more on reading the word of God. और इसलिए अभी आपको पता चलेगा क्यों मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के विषय में ज्यादा दबाव देता So हूँ that God can talk to you. ताकि परमेश्वर आपसे बात कर And सके। what did we hear here? What will we study now? और यहाँ पर इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं Hearing is important. कि सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण What है। you hear is important. जो आप सुनते हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now when I get up in the morning, और जब मैं सुबह के समय जाग उठता I हूँ open my Bible to read. मैं अपने बाइबल को खोलता हूँ पढ़ने के लिए What am I doing? और मैं तब क्या कर रहा हूँ I am letting God speak to me. मैं परमेश्वर को मुझसे बोलने दे रहा हूँ That means I'm going to now hear God speak to me. यानी परमेश्वर मुझे बोलता हुआ मैं सुन रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। God is going to speak to me through the word. परमेश्वर वचन के द्वारा मुझसे बात करने वाला है So the ears of my spirit are open. और इसलिए मेरे हृदय के मेरे आत्मा के कान खुल जाते हैं। Now how is that ear open? अब वे कान कैसे खुलते हैं Because that's what we read. क्योंकि यही बात तो हमने पढ़ी That hearing is how important it is. कि सुनना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। Hearing produces believing. सुनना जो है विश्वास को ले आता है। Believing results in action. विश्वास का परिणाम वो जो है काम में होता है वैसा ही काम God करता is है। talking to me, I'm hearing. और परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और मैं सुन रहा हूँ। Now I hear with my spirit. अब यहाँ पर मैं अपनी आत्मा के साथ हूँ। My spirit has the light of God. मेरी आत्मा में परमेश्वर की ज्योति The है। Bible says because I have the light of और God, बाइबल बतलाती है क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की ज्योति nothing है। is hid in the Bible. बाइबल में मेरे लिए कुछ भी छिपा हुआ That नहीं means है। everything that God is speaking, यानी हर एक बात है जो परमेश्वर मुझसे बोल रहा I है। have the capacity to accept and receive everything. मेरे पास ऐसी काबिलियत है कि सारी बातों को मैं समझ सकूं, सारी बातों को मैं ग्रहण करूं। But many times when we read the Bible, लेकिन कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं, we are reading, हम पढ़ तो रहे we हैं, are showing as though we are hearing, हम ऐसा दर्शा रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, but we are actually not hearing what God is speaking. लेकिन वास्तविकता से परमेश्वर जो कह रहा है उसे हम सुन नहीं रहे Many होते। times we are hearing, कई बार हम सुन रहे होते but हैं, we put limits on what we hear. लेकिन हम जो सुनते हैं उसमें हम सीमाओं को रख
कर देते We हैं। read the word of God, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं and it says, the Bible says God can do this, God has done this, God promises this. We read all this. और बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। सारी बातों को हम सुनते हैं These are words that God is speaking to you. और ये ऐसे वचन है जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा You है। are hearing them in your spirit. आप अपनी आत्मा में उस बात को सुन रहे हो, But we limit our hearing. लेकिन हमारे सुनने को हम सीमित कर देते हैं। This is not acceptable. अरे ये तो मैं कबूल नहीं, ये इस बात को मैं मान नहीं I don't सकता। think this can happen nowadays. मुझे नहीं लगता कि इन दिनों में ऐसी बातें होगी। No, Pastor, this is our olden days. नहीं पास्टर, ये तो पुरातन काल में होता था Nowadays it's all very different. और इन दिनों में तो ये सारी बातें अलग फर्क है। Even though God speaks, परमेश्वर, even though we have the ability to hear everything that God speaks because of the light of His Spirit in us, आत्मा की ज्योति जो हमारे अंदर है उसके द्वारा परमेश्वर जो भी कुछ कहता है, सुनने की काबिलियत हमारे अंदर होने के बावजूद, but still we limit our hearing. लेकिन फिर भी हमारे सुनने को हम सीमित कर देते हैं। Because we limit our hearing, हमारे सुनने को हम सीमित करने के वजह से we limit our believing. हमारे विश्वास के स्तर को भी हम सीमित करते हैं। Because we limit our believing, हमारे विश्वास को हम सीमित करने की वजह से, that is why the blessing and the fruit doesn't come. और इसलिए आशीर्वाद और फल प्रकट नहीं होते। Where did it start from? और ये सारी बातें कहां से शुरुआत हुई? What you've been hearing. आप जो सुन रहे थे उस विषय से, What you've been hearing. आप जो सुन रहे थे उस विषय When से। you read the word of God, God talks to you. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो परमेश्वर आपसे बात करता You है। need to open your mind to that level of receiving everything that God talks to you. और हर एक बात जो परमेश्वर आपसे बात करता है, ऐसी ऐसी बड़े स्वरूप से अपने दिमाग को, मन को आप खोलना है कि जो कुछ प्रभु बोलता है आप ग्रहण कर लें। God will not talk to you things that you can do easily and things that you know. और परमेश्वर ऐसी बातें आपको नहीं बताएगा जो आपको आसानी से वो बात पता है और आसानी से उस बातों को आप कर लोगे। ऐसी बातें परमेश्वर आपको If नहीं you have बताएगा। a child who is 20 years old, आपको अगर आपका ऐसा बच्चा है जो 20 उम्र का do है, you get when the child goes to the bathroom to brush the teeth in the morning? और जब सुबह के समय वो बच्चा बाथरूम में दांत घसने जाता Do है, you tell, okay, now take the brush, तो क्या आप कहते हैं हाँ चलो अभी ब्रश आपका ले लो, take the paste, वो पेस्ट को ले लो put it on the brush, और उस ब्रश पर लगाओ, now put it in your mouth, अपने मुंह में डाल दो start brushing slowly, और धीमे धीमे a little up there, थोड़े ऊपर की a little ओर, down there, थोड़े नीचे a की little ओर, inside there. थोड़े अंदर की ओर घिसो। You don't talk that to your children. आप इस प्रकार से अपने बच्चों से नहीं बोलते। That is something they know to do. ये ऐसी कुछ बात है जो वे खुद जानते So हैं। what are you going to talk to your 20-year-old child? तो आपके 20 उम्र के बच्चे के साथ आप क्या बोलने वाले हैं? Something that they don't know. ऐसी कुछ बात जो वे नहीं जानते, Something that they have not experienced till now. ऐसी कुछ बात जो अब तक उन्होंने अनुभव नहीं किया है, Something out of your experience and maturity. ऐसे कुछ आपके अनुभव से, आपकी वो जो प्रौढ़ता से आप उन्हें बताओगे। But what is happening in the mind of the 20-year-old? 20 उम्र के बच्चे के मन में क्या चल रहा होता है? What is daddy talking? अरे पिताजी ये सब क्या बोल रहे I हैं? don't even understand what he's saying. मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं। Because you are talking about something that you know, ऐसी कुछ बातें आप बोल रहे हैं जो आप जानते हो, but because the child has not experienced it, लेकिन उस बच्चे ने उस बात का अनुभव नहीं करने की वजह से, the child was hearing, वो बच्चा तो सुन रहा था, but she has limited her hearing. लेकिन उन्होंने अपने सुनने को सीमित कर दिया है। Hallelujah. Hallelujah. This is what we do spiritually. और यही बात हम आत्मिक स्वरूप से करते हैं। God does not want to talk to you things that you do properly every day. और हर दिन जो आप बातों को सही ढंग से करते हैं उन विषय के बारे में परमेश्वर बात नहीं करता। So He will obviously talk to you things that are much beyond your ability, much beyond your understanding, much beyond your level of faith. और जरूर परमेश्वर ऐसी बातों को आपको बताएगा जो आपके समझ से कई बाहर है, आपके अनुभव से कई बाहर है, आपके कामों से कई बाहर है। But many times we behave like that young 20-year-old. लेकिन कई बार उस जवान, उस 20 उम्र के जैसे हम वो बर्ताव करते हैं। Arey, how is this possible? अरे ऐसे कैसे संभव है? But that person said like that. लेकिन उस व्यक्ति ने तो ऐसा बोला था। This will not happen. अरे ऐसा नहीं होगा। I don't think it will happen for me. मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ऐसा I होगा। don't think it happens nowadays. मुझे नहीं लगता कि इन दिनों में ऐसा होगा। You heard children say like this. आप जानते हो, आपने सुना होगा, आपके बच्चे ऐसे बोलते They हैं। tell their parents. वे अपने माता पिता से कहते The हैं, day you lived there, it was different. अरे वो आप जमाना अलग था. वो आप जो दिन रह रहे थे वो जमाना अलग था। Nowadays it's very different, Daddy. और इन दिनों में डैडी बहुत ही कठिन है। I don't think you understand. मुझे नहीं लगता कि आप इस बात को समझते And they होंगे। cut off their hearing there. और वहीं पर उनका सुनना वे बंद कर देते हैं। Spiritually we do that. आत्मिक स्वरूप से हम भी ऐसा ही करते हैं। Bible is 2000 years old. बाइबल तो 2000 वर्ष पूर्व का है। Come on, even your dad who's 30 years old has become old fashioned. You imagine the Bible that is 2000 years old. देखिए आपके पिताजी तो 30 उम्र के हैं, वो भी आपके लिए पुराना फैशन से लगे हैं, तो बाइबल तो 2000 वर्ष पुराना। It's like an antique book. वो तो एंटीक किताब की जैसे है। And you say, well, come on, that's that. I don't think that applies right now. और हम कहते हैं कि अरे मुझे नहीं लगता कि
कि यह अभी भी मेरे जीवन में कार्यशील या लागू होता है। God loves you, yes, I accept. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हाँ मैं इस बात को कबूल But करता हूँ। God can heal you, no, I don't लेकिन think so. परमेश्वर आपको चंगा कर सकता नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता। God blesses you, I accept. परमेश्वर आपको आशीष करता है, मैं मान God लेता हूँ। will give you more than enough, no, I don't think so. परमेश्वर आपको जरूरत से ज्यादा देगा नहीं, मैं इस In बात को this नहीं मान age, सकता। can you have more than enough? क्या इस उम्र में आपको इस पीढ़ी में आपको जो है जरूरत से ज्यादा प्राप्त होगा? No, no, the needs are so much. अरे नहीं, जरूरत तो इतने सारी जरूरतें हैं। Dollar is going up, rupee coming down. और डॉलर बढ़ रहे हैं, पैसे की मतलब जो कीमत घट रही I है। can never have more than enough. मुझे तो जरूरत से ज्यादा नहीं प्राप्त हो सकता। We cut off our hearing when God speaks to us through the word. जब परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है तो हम अपने सुनने को बंद कर देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That is the reason why some only produce 30, some only produce 60, some only produce 100, even though they were all good soil. और यही कारण है, इस कार्य की वजह से कुछ लोग 30 गुना, कुछ लोग 60 गुना, कुछ लोग 100 गुना फल लाते हैं, क्योंकि उसी मैदान में अच्छे भूमि पर बीज गिरे हैं। The difference was not the soil. अलगाव जो है भूमि पर नहीं था। The difference was not in their ability to be successful. फर्क जो है उनकी काबिलियत पर नहीं था कि कैसे वह सफल हुए बढ़े। The difference was how they measured their hearing of the word of God. फर्क इस बात से था कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन को वे सुनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God will always talk to you things that are beyond your understanding. परमेश्वर हमेशा उन बातों को आपको बताएगा जो आपके समझ से बाहर है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। You know, if the father of a 20-year-old, अगर 20 उम्र के लड़के का पिता, as I gave the example, actually starts doing that from tomorrow morning, और जैसा मैंने उदाहरण दिया कल से लेकर ऐसे वो व्यक्ति अगर करने लगे अपने बच्चे के साथ, the child is not going to be happy. और वो बच्चा खुश नहीं He's रहेगा, like, Dad, what's wrong with you? I can do this. और वो कहेगा अरे पिताजी आपको क्या हुआ, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। Are you getting what I'm saying? और मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? God is not interested to talk to you things that you are doing, things that are ordinary. He is interested to talk to you things that will blow away your thinking, things that can blow away your understanding, things that are unimaginable to you. Those are the things that He wants you to hear. Because when you hear those things, that hearing becomes your believing. And when you believe, that believing becomes the fruit of your life. और उन बातों को परमेश्वर आपको बताना नहीं चाहता जो बहुत ही आसानी से आप करते हो, सारी बातों को जो जानते हैं उस बात को बताने में दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन ऐसी बात जो आपके मन को अलगाव में ले आए, बहुत ही आपको अचंभित करके ऐसी बातों को वो आपको बताना चाहता है, और जब आप सुनते हो और वो विश्वास में बदल जाता है और वो विश्वास जो है कार्य में बदल जाता है। Hallelujah. Hallelujah. The moment we read something or we hear some preacher talking about something that you don't accept because of your tradition or because of your understanding and your knowledge, immediately you say, no, this is not possible. और जब कोई प्रचारक किसी बात को ऐसा बोलता है जो आपकी समझ से बाहर या आपके रीति रिवाज के विरोध में, तो आप बोलते हैं नहीं यहाँ पे ऐसा संभव नहीं You है। are kind of surprised by, my goodness, what are these people preaching nowadays? और आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, बोलते हैं अरे बाप रे ये व्यक्ति क्या इन दिनों में ऐसे कैसे प्रचार करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If you hear everything that God has to tell you, हर एक बात अगर परमेश्वर जो आपसे कहना चाहते हो सारी बातों को अगर आप सुने, it will be no surprise. तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होने की बात ना होगी, Because God will always talk things that will surprise you. क्योंकि हमेशा परमेश्वर ऐसा ही बोलता रहेगा जो बातें आपको आश्चर्यचकित कर देगी। Hallelujah. हालेलुया। In your school days, आपके स्कूल के दिनों में there would have always been that one student who always comes first. और हमेशा ऐसा एक विद्यार्थी रहा होगा जो हमेशा पहला आ जाता And था, there is another student who always fails. और हमेशा ऐसा विद्यार्थी तो हमेशा जो है अव्वल नंबर से पास होता है, और एक ऐसा विद्यार्थी दूसरा होगा जो हमेशा फेल हो जाता Now था। tell me who will surprise you? अब मुझे आप बताइए कि कौन सी बात आपको आश्चर्यचकित कर The देगी। person who comes first every time, और पहला जो विद्यार्थी जो हमेशा एग्जाम में प्रथम अव्वल नंबर में आता है, even in this exam he came first. अरे इस एग्जाम में भी वो अव्वल नंबर पर आया। Is this a surprise? क्या ये आपके लिए आश्चर्यचकित बात होगी? It's not a surprise. वो कोई आश्चर्य बात नहीं होगी। But the guy who fails every time, लेकिन जो लड़का जो हमेशा फेल होता है, this time he's passed. और इस बार वो पास हो The गया, whole school is talking. तो पूरा स्कूल क्या बात करेगा? अरे पप्पू भी पास हो गया. Even he passed. अरे वो भी पास हो That गया, was a surprise. और ये आश्चर्यचकित बात थी। We don't have to be surprised when God talks to us things that we can't understand, because that is what He's only going to talk to you और about. जो बातें हमें समझ में नहीं आती, वो बात अगर परमेश्वर करे तो इस बात में आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर बात वो आश्चर्यचकित बात हुई हमसे करने वाला है। If He is going to talk to you, अगर वो आपसे बात करेगा, He's going to only talk about things that are beyond your capability, beyond your ability,
supernatural blessings, supernatural, success, supernatural victories. वो हमेशा आपके वो सीमा के बाहर, आपकी कल्पना से बाहर वो अलौकिक सामर्थ, अलौकिक जो है प्राप्त करना है, ऐसी बातों को वो करेगा। You don't have to be surprised of that. और इस बात के लिए आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत But नहीं when है। we get surprised, लेकिन जब हम आश्चर्यचकित होते we हैं, limit our hearing. हम हमारे सुनने को सीमित कर We देते start हैं। measuring our hearing. हमारे सुनने को हम केवल एक आंकते हैं, उतना ही सुनते If you are हैं। reading the whole Bible, आप पूरा बाइबल पढ़ते हो, God is talking to you through the whole word, परमेश्वर पूरे वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा but है, you are receiving only what you want to receive. लेकिन आपको जो प्राप्त करना है उतना ही आप प्राप्त कर रहे You हो, are receiving only what you believe is practically possible. और आप उतना ही प्राप्त करते हो जितना आपको लगता है कि वास्तविकता से ये जो है प्रैक्टिकल है, वास्तविक इतना है, उतना ही आप ग्रहण करते हो। Only that then becomes your faith. और केवल उतना ही आपका विश्वास बनता And है, only that bears fruit. और केवल उतना ही फल लाता But है। there are different kind of people. लेकिन अलग प्रकार के लोग There हैं, is this person और ऐसा भी एक व्यक्ति है who reads the word, जो प्रभु का वचन को पढ़ता है, whose ears are open. जिसके कान खुले हैं, God is talking to him. परमेश्वर उससे बात कर रहा And है, this guy is just hearing he's just hearing with this big smile on his face. और अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट लाते हुए उस पर में परमेश्वर के वचन को पूर्णता से सुन रहा Through है। the word of God, God is saying, I will do this, I will do this, I will take you there, I will make you the head and not the tail. You will have nations and this and that. And he's just, he's not seeing himself, but he's just hearing the word of God and he's just receiving and he's just hearing and he's just hearing and he's just hearing. और परमेश्वर उससे बात करता है और वचन में वो पढ़ता है कि परमेश्वर तुझे आशीष करेगा, परमेश्वर तुझे यहाँ ले जाएगा, वहाँ ले जाएगा, प्रभु तुझे पूछने सब ठहराएगा, और सारी बातें अपने ओर नहीं देखता लेकिन प्रभु की ओर देखता है, सारी बातों को वो ग्रहण करता है, सुनता है। And as he hears all this, और जैसे सारी बातों को वो सुनता है, limitless hearing, और जिसकी कोई सीमा नहीं इस प्रकार का सुनना, unmeasured hearing, और असीमित इस प्रकार का सुनना, everything that the word of God tells him, he says, yes, I believe that this is what God is talking to me और today. हर एक बात जो परमेश्वर से बात करता है वचन, तो वो कहता है कि हाँ मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। That hearing now becomes his believing. और वो जो सुनना है अब उसका विश्वास बन जाता The है। whole day he's walking. पूरा दिन भर वो चल रहा है, Maybe he's doing a small job in a small office. पूरे दिन भर जो है छोटे से ऑफिस में छोटा सा काम करता But he होगा, has heard something big from God. लेकिन ऐसी कुछ बहुत ही बड़ी बात को परमेश्वर से उसने सुना है। In the real life, it cannot happen. वास्तविक जीवन में नहीं हो सकता, But this guy, लेकिन ये व्यक्ति who has heard big, जिसने बहुत ही बड़ी बात को सुना, has now started believing big. अब बहुत ही बड़ी बात पर विश्वास करने लगा। In reality, he's having a small job. वास्तविकता में उसका बहुत ही छोटा जो काम But in है, his heart, he is believing big. लेकिन उसके हृदय में बहुत ही बड़ी बात पर विश्वास कर रहा The है। Bible says that soil will bear 100 और fruit. बाइबल बतलाती है कि वो जमीन 100 गुना फल लाएगी। Hallelujah. 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 I just want to challenge you today to start hearing big from God. मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर से बड़ी बातों को सुनने लगे। This is the whole message of today. Hear big from God. और यही आज पूरा जो संदेश है, केवल ये एक वाक्य में प्रभु से बड़ी बातों को आप सुनिए। Don't limit God to what you believe. आप जो विश्वास करते हो उसके मुताबिक परमेश्वर को भी सीमित मत कर दो। Limit yourself to what God believes. परमेश्वर जो विश्वास करता है उसके तरफ से उसके हिसाब से अपने आप को आप सीमित करो। Don't limit yourself to what you can do. आप जो कर सकते हो उसके मुताबिक खुद को सीमित मत कीजिए। Don't limit God to what you can do. आप जो कर सकते हो उसकी ओर से परमेश्वर को उतना सीमित मत करो। Limit yourself to what God can do. परमेश्वर जो करता है उसकी सीमा के तरफ, उस सीमा के हद तक अपने आप को आप बना From ले। today when you open your Bibles, आज से लेकर जब कभी अपनी बाइबल को आप when you खोलेंगे, start reading, आप पढ़ने लगे, make this prayer to God. और ये प्रार्थना आप प्रभु से करें, God, talk something big to me today. परमेश्वर आज कुछ बड़ी बात को मुझसे बोलिए, Let my hearing be big. मेरा सुनना बहुत ही बड़ा होने दो। Hallelujah. आमीन। Lord, talk something big to me और today. परमेश्वर आज कुछ बड़ी बातों को मुझसे Let my बोलिए, hearing be big, Lord. मेरा सुनना बहुत ही बड़ा होने Let my पाए, hearing be big, Lord. मेरा सुनना बहुत ही बड़ा होने And पाए, everything that God speaks to you, और हर एक बात जो परमेश्वर आपसे बोलेगा, whether it makes sense practically or not, चाहे जो भौतिक स्वरूप से वो कोई आपको समझ में आता हो या आपको कुछ समझ उसमें प्राप्त होती हो या ना हो, whether it makes educational sense or not, और चाहे आपको पढ़ाई के क्षेत्र में आपको अगर कुछ समझ उससे मिलती हो या नहीं, whether it makes scientific sense or not, चाहे विज्ञानी तौर पर उसमें कुछ समझ आपको प्राप्त होती या ना होती, कोई बात
बात नहीं। Just start hearing what God's saying. प्रभु जो कहता है बस अब सुनने लगे। I was meditating on this man called Moses last week. और पिछले सप्ताह मूसा इस व्यक्ति के बारे में मैं अध्ययन कर रहा था। I have all respects for Moses, I'm और telling you. मूसा के प्रति मेरा बहुत ही बड़ा आदर है, मैं आपको After बताऊं। Jesus, if there's anyone whom I really adore in the Bible, it has to be Moses. और यीशु के बाद अगर किसी को मैं बाइबल में अगर मैं सराहता हूं तो वो मूसा है। Just imagine his situation. वो जरा उसकी स्थिति को जरा कल्पना कीजिए। God tells, go and stand before Pharaoh परमेश्वर कहता कि जाकर फिरौन के सामने खड़ा रहे and throw your rod. और तेरी लाठी को तो फेंक। And you know, I will do this. और मैं ऐसा करूंगा, प्रभु कहता। God spoke somewhere else. परमेश्वर ने कहीं और उससे बातें की। But imagine the guts and the confidence this man Moses should have had to go and do that before Pharaoh. वो जरा कल्पना कीजिए मूसा को इतनी हिम्मत और इतना उसे इतनी हिम्मत और वो सामर्थ लगी कि वो जाकर फिरौन के सामने ऐसा खड़ा होकर करे। What if he threw that stick and nothing happened? क्या होता अगर वो लाठी को फेंकता और वो कुछ भी नहीं होता वहां पर, तो क्या होता? Hallelujah. हालेलुया। And I'm sure that's why I was never Moses, because I would have never done that. और मैं इसलिए जानता हूं कि मैं मूसा नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा नहीं करता। What if that did not turn into a snake? अरे अगर वो सांप नहीं बनेगा तो क्या होगा? What if my snake did not eat all the other snakes of the magicians and instead they ate my snake? क्या होगा अगर दूसरे जो जादूगर वो लाठियों को सांप बनाएगा और मेरा सांप उन सांपों को न निकले तो क्या होगा? What if I said it will hail and it did not hail? अगर मैं कहूंगा कि आग के गोले बरसे और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? What if I said Pharaoh that all the firstborn of Egypt will die and no one dies and next day morning they're all dancing on the streets? और क्या होगा अगर मैं कहूंगा कि मिस्र के सारे पहिलोटे मरेंगे और दूसरे दिन मैं देखता हूं कि कोई भी पहिलोटा नहीं मरा और रास्ते पर सब लोग नाच रहे हैं? See, Moses was hearing big from God. देखिए मूसा परमेश्वर से बहुत ही बड़ी बात को सुन रहा था And it took a lot of courage to hear that big. और उस बड़ी बात को सुनने में बहुत ही बड़ी हिम्मत भी लगी। I would have been in Moses' place. अगर मैं मूसा के स्थान पर होता I would have trimmed everything that God is saying into a very spiritual aspect. और मैं सारी बातें जो परमेश्वर कहता है उन सारी बातों को आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक तरीके से मैं बना लेता। God said, take your rod. परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी लाठी ले ले। What can a rod be? अरे लाठी का मतलब क्या होगा? Rod can be God's promise that He gave me in 1st January. लाठी का मतलब परमेश्वर का वो वायदा है जो परमेश्वर ने पहले जनवरी को मुझे दिया। God said, put down the rod. परमेश्वर ने कहा कि उस लाठी को नीचे रख। Maybe I write down that verse in my life and I meditate it, every day. हो सकता है कि वो वचन को मैं अपनी जिंदगी में लिखूं और रोज मेरी जिंदगी में उस वचन को मैं what I'm hearing from God, I'm just trimming it to make it suitable for what I feel is practically possible. और मैं जो क्या करता हूँ परमेश्वर जो मुझसे कह रहा मैं उस वचन को उस बड़े सुनने को मेरी जिंदगी के मुताबिक मैं आ कर आऊं ताकि मेरे हिसाब से मैं उस बात को बना लूं। But God was not asking Moses anything spiritual there. लेकिन परमेश्वर वहां पर कुछ मूसा को आत्मिक बातें नहीं बोल He रहा। was saying, take the rod and take it before Pharaoh. और वो कह रहा था कि अपनी लाठी ले और मूसा के और फिरौन के सामने मूसा को ले Moses जा। was hearing big. मूसा बहुत ही बड़ी बात को सुन रहा था। And if he had to be used by God, अगर परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाना है he तो had to hear big. तो उसे बड़ी बात को सुनना ही होगा। He cannot trim it according to his own comfort. और उसके खुद के सुविधाजनक तौर पर उस बात को वो बना नहीं सकता। He had to do what God said he can do. परमेश्वर ने जो कहा वो कर सकता है उसे करना ही होगा। And when Moses did that, जो मूसा ने ऐसा किया। hallelujah, हालेलुया। you know Moses' life. आप जानते हो मूसा के जीवन को। Hallelujah. हालेलुया। What does God say about Moses? परमेश्वर मूसा के बारे में क्या कहता है? He is a man with whom I speak face to face. ऐसा जन है जिनको मैं जिससे मैं आमने सामने बात With करता हूँ। whom did God speak face to face? परमेश्वर ने किससे आमने सामने बातें की? The man who had the courage to hear everything that God spoke to him. ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी हिम्मत है कि जो भी कुछ परमेश्वर कहे उसे सुनने की बड़े सुनने की जिसके अंदर हिम्मत है। Hallelujah. Hallelujah. He heard big from God. उसने परमेश्वर से बहुत ही बड़ी बात को सुना। Standing before the Red Sea. और लाल समंदर के सामने खड़ा होते हुए 15 lakh men, women and children and cattle with him. और 15 लाख ऐसे स्त्री और पुरुष और बच्चे और भेड़ और बकरियां सारे बातें उसके साथ थे। Pharaoh's army behind. और उसके पीछे जो फिरौन की सेना थी No way out of there. और वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं। People ready to kill Moses. लोग जो है मूसा को घात करने के लिए तैयार थे, मार डालने के लिए। Everyone blaming Moses. और सारे लोग मूसा पर दोष लगा रहे थे And he cries out to God. और वो परमेश्वर को पुकारता You know है। what is the first thing that, what did Moses do? आप जानते हो मूसा ने क्या The किया? Bible says he fell down on the ground when he was crying to God. बाइबल में लिखा है कि जब वो परमेश्वर को पुकार रहा था वो नीचे गिर पड़ा, यानी साष्टांग नमस्कार कर दिया।
know what did God first tell him? आप जानते हो सबसे पहले परमेश्वर ने उससे क्या कहा? Moses, what are you doing down there? मूसा नीचे तो वहां पर क्या कर रहा है? Read the Bible, it says that. बाइबल पढ़िए उसमें ऐसा लिखा First है। thing God says, what are you doing down there? पहला बाइबल वचन कहता है, प्रभु कहता है, तू क्या कर रहा है? Get up! तू उठ जा, खड़ा हो। You're going to hear big from me now. और तू इस समय मुझसे बड़ी बात को सुन रहा है, सुनने Again, वाला। God spoke about that stick. और उसके बाद में दोबारा उस लाठी के बारे में Lift up your rod. और तेरी लाठी को उठा। Moses might be expecting something different. मूसा कुछ और ही बातों की अपेक्षा करता होगा। Maybe God was saying that I'm going to send my chariots of fire from heaven and fight for you. और वो सोचता होगा कि परमेश्वर ऐसा कहेगा कि मैं स्वर्ग से वो आग के रथ को भेज कर तेरे लिए मैं अब युद्ध करने वाला। Such a critical situation. और इतनी भयंकर ये परिस्थिति थी। In such a difficult situation, इतनी बहुत ही कठिन परिस्थिति में Moses hears from God. मूसा ने परमेश्वर की ओर से सुना। And he hears big from God. और वो परमेश्वर की ओर से बहुत ही बड़ी बात को वो सुनता है। Lift up your rod. तेरी लाठी को उठा। Do what I'm saying. मैं जो कहता हूँ वो तू कर। Lord, what if nothing happens? और अरे प्रभु अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? Do what I say. मैंने जो कहा केवल Moses is hearing from God. मूसा परमेश्वर से सुन रहा है। He's not trimming that to his own comfort. वो अपने खुद के सुविधाजनक के तौर पर उस बात को काट नहीं The रहा। Bible says he lifted his rod. बाइबल बतलाती है कि उसने अपनी लाठी को उठाया। You know the story. आप कहानी को जानते हो। It is with this man that God speaks face to face. इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर आमने सामने बात करता है। Man who hears big from God. ऐसा जन जो परमेश्वर से बड़ी बात को सुनता है। Or don't you and I want to be that person who hears big from God? क्या जो आप और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहते जो परमेश्वर से सुनता हो? The Bible has answers for everything you need in your life. आपको आपके जीवन में जिंदगी में जो भी कुछ चाहिए उसके प्रति बाइबल में उसका जवाब है। It's the most complete book you can ever find in the world. वो पूरे विश्व में सबसे परिपूर्णता की अगर किताब है तो वो बाइबल है। It does not just talk to your knowledge. केवल आपको आपके ज्ञान के संबंधित वो बात नहीं करती। It does not just talk to your intellect. केवल आपके बुद्धि के प्रति वो बात नहीं करती। It goes down even to your soul and to your spirit. लेकिन आपके प्राण और आपके आत्मा तक वो किताब बाइबल पहुंचती है। Hallelujah. हालेलुया। When you read the word, जब आप वचन को पढ़ते हो, God speaks big to you. परमेश्वर बहुत ही बड़ी बात को आपको बताता है। Concerning your family, He speaks big. आपके परिवार के विषय में बहुत ही बड़ी बात वो आपसे कहता है। Concerning your children, He speaks big. आपके बच्चों के विषय में बहुत ही बड़ी बात वो कहता है। Concerning your future, He speaks big. आपके भविष्य के प्रति बहुत ही बड़ी बात को वो आपसे बोलता है। Hallelujah. हालेलुया। Concerning your finances, He speaks big. आपके आर्थिक विषय में बहुत ही बड़ी बात परमेश्वर आपसे कहता है। Concerning your life, He speaks big. आपके जीवन के विषय में बहुत ही बड़ी बात वो आपसे करता है। How much you hear, लेकिन आप कितना सुनते हैं that is going to determine how much fruit you will bear in your life. और इस पर निर्भर है कि कितना आप आपकी जिंदगी में फल लाओगे। 30-fold, 30 गुना, 60, 60 गुना or 100. या 100 गुना। I believe that everyone here desires to bear 100-fold. मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जन जो सुनते हैं वो 100 गुना फल लाना If पसंद you want to करते हैं। bear 100-fold, अगर आप 100 गुना फल लाना चाहते हो you got to hear big from तो God. आपको परमेश्वर से बहुत ही बड़ी बात सुननी होगी। Might be beyond your हो understanding. सकता है कि आपके समझ से वो परे हो। Might be practically impossible. हो सकता है कि वास्तविक तौर पर वो बात बिल्कुल असंभव हो। It will always be practically impossible. हमेशा वास्तविकता में वो सारी बातें असंभव ही It will रहेंगी। always be beyond your capability. आपकी समझ आपकी काबिलियत से बाहर ही होगा जो प्रभु It आपसे will always be beyond your limit. हमेशा आपकी सीमाओं के बाहर ही होगा जो It प्रभु will आपसे always करेगा। be beyond your income. और आपके तनख्वाह से भी ऊपर कहीं बढ़कर वो हमेशा It will होगा। always be beyond your talent. और आपके हुनर और कला से बहुत ही आगे वो It बढ़कर will रहेगा always be हमेशा। beyond your personality. हमेशा आपके व्यक्तित्व के वो बाहर ही होगा सारी बातें। Hallelujah. हालेलुया। But when we hear what God says, लेकिन परमेश्वर जो कुछ कहता है जब हम सुनेंगे, when we receive it, जब उसे आप ग्रहण करोगे, when you know it's not physically, as flesh and blood, you believe that it's not possible, जब आपको ये बात पता चल जाएगी कि लहू और मांस होने के नाते वो आपसे संभव नहीं just है, receive it in your heart. लेकिन आपके हृदय में उस बात को ग्रहण करें Say, Lord, my spirit says it's not possible. और आप कहें कि प्रभु मेरी आत्मा कहती है कि ये संभव नहीं But है, I don't want to limit my life to what my spirit says, but I limit my life to what your spirit says. And Lord, your spirit says that these things are possible for me. और So I लेकिन receive प्रभु that. मेरा आत्मा जो कहता कि सीमित नहीं है उस पर मैं विश्वास नहीं रखूंगा, आपकी आत्मा जो कहती है वो जो असीमित है उस बात पर मैं विश्वास रखता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When you do that, जब ऐसा आप करते हो, what you have heard, आपने जो सुना है, you will find that you will start believing. आप देखोगे कि आप जो सुना है उस बात पर आप विश्वास करने लग जाओगे, What you believe. और जो आप विश्वास करोगे Oh, that thing comes to pass in your life. और वो बातें जरूर आपकी जिंदगी में होंगी। Romans 10:17 says like this. रोमियो 10:17 इस प्रकार से कहता है, Faith comes by hearing and hearing by the word. सुनना विश्वास से और
मसीह के वचनों के द्वारा विश्वास आता है। When you read the word, जब आप वचन पढ़ते हो God is talking to you. परमेश्वर आपसे बात करता How है। much are you listening? आप कितना सुन रहे हो? Hallelujah. Hallelujah. Our prayer this morning is this. इस सुबह के समय हमारी प्रार्थना ये है, It's just this prayer. केवल ये ऐसी प्रार्थना है And Lord, I want to hear big from कि you. परमेश्वर मैं आपसे बड़ी बात को सुनना चाहता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Every day let this be your prayer. और हर एक दिन ये आपकी प्रार्थना ऐसे रहने दो। Lord, I want to hear big from you. हे प्रभु मैं आपसे बड़ा सुनना चाहता हूँ। Hallelujah. 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 May Hallelujah. God bless these words for us. Shall we rise up to our Father? परमेश्वर ने वचनों को हमारे आशीर्वादित करे। आइए हम खड़े